हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ दिव्यांशु। हेलो, आवाज आ रही? Yes, sir. ओके ओके। तो टुडे आई विल कवर द total cover factor of the fabric and the cover factor. Already we have covered about the cover factor, as the cover factor of the fabric is a important factor for each class of the fabric, because for the suiting, for the shirting, for denim, for seating fabrics, for any kind of fabric, that war core factor, weft core factor, and total core factor is constant. As I have sent you the total detail list to you, है ना? So in that Dixon has taken the average of all the class of the fabric, 5 best mill of the world, and he had calculated the cover factor. Clear? So today I will tell you how to calculate the cover factor and the total cover factor of the fabric. So cover factor, or another thing is called as the fractional cover. Fractional cover. Both are the same thing, but we can convert fractional cover to the cover factor. Clear? And what is the cover factor? Cover factor is the covering ability of the fabric. If you compare the suiting fabric to the shirting fabric, then in the suiting fabric, the density of the warp and weft is very high in the fabric. That's why the cover factor is very high in the suiting fabrics. As in case of the denim, in case of the gabardine, and in case of the suiting fabric. Whereas in the shirting fabrics, the cover factor is poor or less, because we need more air permeability in the fabrics, in the shirting fabrics. Clear? So that's why the value of the cover factor changes according to the end use of the fabric. जैसे मैंने बताया आपका, in case of the आपका jammed structure, when warp and weft both are jammed, as in the wind seaters. Clear? The cover factor is maximum and it almost reaches to 1. So in the winter, the ये आपका wind seaters you wear and a jackets, so the outer cover of the wind seater is the आपका jammed structures of the warp and weft. So the cover factor is very high. So now I will discuss about the cover factor. So first I will take the warp cover factor. Warp cover. So first I will calculate the warp cover factor, or similarly we can calculate for the weft and to the fabric. So for calculating the cover factor of the warp, we take 1 by 1 inch of the fabric. Clear? And the inch per repeat, है ना? Inch per inch we take as a N1, है ना? मतलब वार्प डेंसिटी है, that is the inch per inch.
तो we take as a N1 the density of the warp. Now you can make the figure of the 1 by 1 inch. So let us take it is the 1 inch of the warp. We can take this as a 1 inch, ठीक है ना, and the length is also equal to 1 inch, है ना, and these are the warp. You can make the warp so these are the warp threads. I have taken the density of the warp is equal to D1 and the count of warp is equal to, as we know that it is the we take as a capital N1, ठीक है ना. Now the fractional cover, will be equal to projected area upon the total area. Projected area of warp upon total area, ठीक है. तो projected area will be equal to warp, projected area of warp. तो ये आपका warp है, this one is the warp, ठीक है ना. तो if you calculate the area of the one warp, है ना, तो here the length is D1, width is D1 and length is 1 inch. So projected area of the one warp will be equal to 1 into D1. This will be the projected area of the one warp. And how many warp are in a 1 inch? That is equal to N1. So the total area will be equal to into N1 upon. So this will be the total area of the warp. This is the area of the one warp and these are the total number of the warp N1 upon total area. तो total area कितना हो जाएगा, मैंने लिया आपका 1 इंच आपकी लेंथ है and 1 इंच आपकी विड्थ है. तो total area will be equal to 1 into 1, or we can write as a N1 into D1. Clear? 1 by 1 बराबर 1 हो जाएगा and this will be equal to N1 into D1. Clear? And already we have discussed the diameter, general equation of the diameter, that is equal to N1 SDF1 into V1 upon under root N1. ये मैंने already derive किया general equation of the yarn diameter, where SDF is the system diameter factor and इसकी value each class in direct system like cotton system, worsted और woolen, इसकी value आपकी अलग अलग होती है और specific volume पियर्स ने निकाला था स्पन यार्न का 1.1 cc per gram. तो if we take, so we can write as a
N1 upon under root N1 and SDF1 into V1. Clear? As you know that the SDF is constant. Clear? System diameter factor की वैल्यू फिक्स है, स्पेसिफिक वॉल्यूम स्पनयान का 1.1 ये भी आपका फिक्स है। अब आपका जो वेरिएबल है वो क्या है, आपका N1 एंड कैपिटल N1, मतलब आपका इंच पर इंच आप कपड़े में चेंज कर सकते हैं और काउंट आप चेंज कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है आपकी, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज द K1 इंटू SDF1 इंटू V1, और ये बराबर हो जाएगा आपका, इसको डिनोट करते हैं K1 से, ठीक है ना। तो K1 बराबर हो जाएगा आपका ये K1 हो जाएगा आपका, तो K1 बराबर हो जाएगा आपका SDF1 अंडर रूट V1, और वी कैन राइट एज ए K1 बराबर कवर फैक्टर, इसी को बोलते हैं कवर फैक्टर SDF1 अंडर रूट V1। इफ यू टेक मैक्सिमम कवर फैक्टर, क्लियर, मैक्सिमम कवर फैक्टर आपका कितना हो सकता है कि आपका टोटल ये जो एरिया है आपका, ये एरिया आपका टोटल वार का हो सकता है, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्टेड एरिया बराबर हो जाएगा टोटल एरिया के। तो मैक्सिमम कवर फैक्टर आपका कितना हो सकता है, फ्रैक्शनल कवर 1 के बराबर, क्लियर। मतलब ये टोटल आपका वार्प हो सकता है, जैसे इन केस ऑफ द जैम्ड स्ट्रक्चर्स, वार्प एंड वेब सीटर्स, ये टोटल आपका वार्प एंड वेब टोटल कवर होता है फैब्रिक के अंदर। तो टोटल आपका फ्रैक्शनल कवर की वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो जाती है। तो वी कॉल एज ए K1 बराबर 1 मैक्सिमम कवर फैक्टर, एंड वी कॉल एज ए K1 इंटू SDF1 into V1. तो we can write K1 बराबर 1 by SDF1 into V1. And you know, for the cotton system, in case of the cotton system where the hang size is equal to 840 yard, है ना, तो यहां पर आपका मैंने निकाला हुआ था ऑलरेडी सिस्टम डायमीटर फैक्टर की वैल्यू और स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू। तो K1 बराबर हो जाएगा आपका 1 over SDF, तो दैट इज इक्वल टू 1 upon 0.0342 अंडर रूट 1.1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो K1 बराबर हो जाएगा आपका 28। तो मैक्सिमम कवर फैक्टर आपका हो सकता है कॉटन सिस्टम के अंदर 28, इससे ज्यादा कवर फैक्टर आपका नहीं हो सकता है इन केस ऑफ द कॉटन। तो वी कैन राइट एज ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लिख सकते हैं K0 बराबर हो जाएगा आपका 28, और यू कैन सी एज ए K1 बटे K0 बराबर हो जाएगा स्मॉल K1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि K0 बराबर हो जाएगा आपका 1 over SDF1 अंडर रूट V1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो दिस विल बी K1 अपॉन K0 बराबर हो जाएगा K1। तो ये फार्मूला आपका हो गया, दिस इज द विल बी यूज्ड। तो K0 इज द मैक्सिमम कवर फैक्टर और K1 इज द एक्चुअल कवर फैक्टर और K1 इज कॉल्ड एज द फ्रैक्शनल कवर। तो इसके द्वारा हम ये कपड़े का फ्रैक्शनल कवर, कवर फैक्टर
और K0 की वैल्यू नोन है, तो इससे हम केवल ये हम वैल्यूज आपका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, दिस विल बी यूज्ड इन द, दिस यू कैन टेक एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दिस इज इन द कॉटन सिस्टम। अगर आप वर्स्टेड में निकालेंगे, वर्स्टेड सिस्टम, तो वहां पर आपने देखा था कि सिस्टम डायमीटर फैक्टर की वैल्यू चेंज है, तो K1 बराबर हो जाएगा आपका, K1 बराबर K1 SDF1 into V1। और हियर इन केस ऑफ द वर्स्टेड सिस्टम SDF की वैल्यू हमने निकाली थी 0.0418, सिस्टम डायमीटर फैक्टर की वैल्यू इतनी थी। तो आपका K0 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, K0 बराबर आ जाएगा 1 SDF अंडर रूट V1, और वी कैन राइट एज ए 1/0.0418 अंडर रूट 1.1। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 23। तो अब आप देखिए कि जो K0 की वैल्यू है वर्स्टेड सिस्टम में और कॉटन सिस्टम में आपकी अलग अलग है। मैक्सिमम कॉर फैक्टर कॉटन सिस्टम में 28 है, और अगर आप वर्स्टेड में निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 23। ऐसे अगर आप वूलन में निकालेंगे तो इन केस ऑफ द वूलन सिस्टम, in case of the woolen system, your K1 is equal to K1 SDF1 under root V1, or in case of the woolen system, SDF1 will be equal to 0.0618। ठीक है, ये मैंने पहले निकाल रखा आपका। तो K1 तो आपका K0 बराबर आपका निकल के आ जाएगा 1 SDF अंडर रूट V1। तो ये बराबर हो जाएगा 1/0.0618 इंटू अंडर रूट 1.1। सो दिस विल बी इक्वल टू 18। ठीक है, तो मैक्सिमम कॉर फैक्टर आप देखें तो ये आपका चेंज होगा। वर्स्टेड के अंदर इट इज 23, कॉटन के अंदर 28, वूलन के अंदर इट इज K0 बराबर हो जाएगा 18। तो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द कॉर फैक्टर ऑफ द फैब्रिक वेयर इट्स वैल्यू में चेंज। अगर आप कॉटन सिस्टम में निकालते हैं तो उसकी वैल्यू अलग होगी, वर्स्टेड में निकालते हैं तो वैल्यू अलग होगी, वूलन में निकालते हैं तो वैल्यू अलग होगी, डायरेक्ट सिस्टम में निकालेंगे तो वैल्यू आपकी अलग अलग आएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आप किस सिस्टम के अंदर निकाल आप वैल्यू को निकाल रहे हैं। अब कैसे कैलकुलेट, मैंने आपको बताया था कॉर फैक्टर, अगर जैसे N1 बराबर है आपका 50 और कैपिटल N1 बराबर है आपका 16 NE, तो K1 बराबर कितना हो जाएगा, K1 बराबर हो जाएगा N1 अपॉन अंडर रूट N1, है ना। तो N1 की वैल्यू है आपकी 50 और इसकी वैल्यू है आपकी 16 कॉटन सिस्टम में, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 50/4। तो दिस विल कम आउट टू बी द 13 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम K1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, K2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको N1 मालूम है और कैपिटल काउंट मालूम है, डेंसिटी मालूम है, तो इस तरीके से हम कॉर फैक्टर की वैल्यू, और मैंने आपको बताया था इसके द्वारा जैम्ड स्ट्रक्चर के द्वारा आप सेट कपड़े का रीड एंड पिक भी आप निकाल सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं।
So this all about the cover factor. Now I will take the total cover factor of the fabric, that is equal to Kc बराबर K1 plus K2 minus K1 K2 by 28. ये होगा आपका कॉटन सिस्टम के अंदर। अगर आप कॉटन सिस्टम में निकालेंगे तो यहाँ 28 होगा, वस्टेड होगा तो आपका 23 आ जाएगा, वूलन होगा तो 18 आ जाएगा। तो ये टोटल, अगर आपको वार्प कोर फैक्टर मालूम है, वेब कोर फैक्टर मालूम है, तो बाय दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द टोटल कवर फैक्टर ऑफ द फैब्रिक। ठीक है ना? तो कैसे, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल कवर फैक्टर ऑफ द फैब्रिक? तो वी टेक द प्लेन वीव फैब्रिक, ये आपने ले लिया, दीज आर द वार्प, और ये आपका जो है वेफ्ट है, तो दिस विल बी द वार्प, और ये आपका हो जाएगा वेफ्ट आपका। तो आप देखें तो ये प्लेन वीव है, और इसके अंदर दीज आर द, दे आर द वार्प एंड दे आर द वेफ्ट। ठीक है? एंड दिस इज द प्लेन वीव एंड the density of the warp is warp inch per inch, that is equal to N1, and the count of the warp, count of warp N1। ठीक है? और ये आपका वेफ्ट इंच पर इंच बराबर N2, and the count is equal to N2। ठीक है? तो now we have taken the इंच पर इंच या वार्प इंच। हाँ, वेफ्ट में तो सर पिक्स होगा ना सर, पिक्स पर इंच। हाँ, ये आपका, हाँ ये आपका वेफ्ट इंडिया, हाँ ये आपकी, सॉरी इसको वेफ्ट कर लीजिए, सॉरी। फिक्स पर इंच N2, काउंट आपका N2 है, और ये आपका वार्प है, इसकी डेंसिटी है N1, और इसकी डेंसिटी आपका, काउंट है आपका कैपिटल N1। ठीक है? नाउ ये आपका फ्रैक्शनल कवर ऑफ द वार्प। ठीक है ना? फ्रैक्शनल कवर ऑफ वार्प। ठीक है? तो ये आपका, इसको डिनोट करेंगे केसी से, तो ये बराबर हो जाएगा आपका प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ वार्प प्लस प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ वेफ्ट
माइनस, अब आप देखें ये प्लेन वीव है आपकी, ठीक है, तो प्लेन वीव के अंदर आपका ये आपकी रिपीट हो जाएगी। आप देखें तो ये आपकी जो है एक तरीके से रिपीट है आपकी, ठीक है ना, और यही चीज आपकी बार बार रिपीट हो रही है। आप देखें तो ये आ जाएगा आपका यहां से लेकर के और आपका ये यहां तक, ये रिपीट है आपकी जो पूरे फैब्रिक के अंदर रिपीट हो रही। ये तो फर्स्ट रिपीट हो गई आपकी, ये आपकी सेकंड रिपीट हो गई, ये आपकी थर्ड रिपीट है, ये फोर्थ रिपीट है, और यही रिपीट आपकी पूरे फैब्रिक के अंदर रिपीट हो रही। तो वी कैन टेक दिस एज ए वन रिपीट। अब इसी रिपीट के हम टोटल कवर फैक्टर निकाल लेंगे और वही टोटल कपड़े का कवर फैक्टर आपका हो जाएगा। क्लियर? हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग कि इसका जो ये जो आपका डायमीटर है आपका, तो आपका ये जो है आपका ये रिपीट है आपकी। क्लियर हुआ आपको? ये रिपीट है जो फैब्रिक के अंदर रिपीट हो रही है। ये फर्स्ट रिपीट है, ये सेकंड रिपीट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और इसी रिपीट का हम कॉर फैक्टर निकालते हैं। क्लियर? इसका जो डायमीटर है वी एज्यूम एज ए D1, और वेफ्ट का डायमीटर है आपका D2, ठीक है ना। तो तो आपका तो दिस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द वार, डायमीटर ऑफ द वेब, ठीक है। अब नाउ टोटल ये आपका जो डिस्टेंस होगी हमारी एक इंच से दूसरे इंच की, ये डिस्टेंस हमारी किसके बराबर हो जाएगी? 1/N2 के बराबर, क्योंकि टोटल 1/N1, ये डिस्टेंस हो जाएगी 1/N1, क्योंकि हमारे 1 इंच के अंदर कितने थ्रेड्स हैं? N1 आपके हैं 1 इंच, तो 2 इंच के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 1/N1, ठीक है। और ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी हमारी 1/N2 के बराबर। ये इज इट क्लियर? ये समझ में आया आपको? ये डिस्टेंस है हमारी N1 के बराबर 1 इंच के अंदर। तो दो थ्रेड्स के बीच की दूरी वो P1 P2 निकालते थे ना पियर्स थ्योरी में, तो ये एक तरीके से P1 आपका हो जाएगा 1/N1 के बराबर, और P2 हो जाएगा आपका 1/N2 के बराबर, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस आपको मालूम हो गई। तो आप ये देखें कि भी ये टोटल प्रोजेक्टेड एरिया आपका वार्क का है, और ये टोटल प्रोजेक्टेड एरिया आपका वेफ्ट का है। तो टोटल, और ये एरिया आपका जो है, ये एरिया आपका कॉमन है। आप देखें तो ये एरिया जो है हमारा, ये एरिया आपका, ये एरिया जो है आपका, ये एरिया आपका कॉमन है दोनों में, ठीक है ना। तो ये जब हम D1 का प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे और वार्प का, और D2 वेफ्ट का प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, तो ये एरिया बार बार कॉमन हो जाएगा, और इस एरिया की वैल्यू हो जाएगी आपकी
D1 इंटू D2 के बराबर, ठीक है। और नीचे आता आपका टोटल एरिया, तो दिस विल बी इक्वल टू तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द वार्प। अब वार्प का एरिया कितना हो जाएगा, ये आपका लेंथ हो जाएगी आपकी D1 इंटू 1/n2, ठीक है। इसकी चौड़ाई हो जाएगी D1 और लंबाई हो जाएगी 1/n2, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द वार्प। और प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द वेफ्ट कितना हो जाएगा, D2 इंटू 1/n1 माइनस ये हो जाएगा टोटल एरिया, ये टोटल एरिया, ये कॉमन एरिया है, ठीक है। तो कॉमन एरिया हमारा कितना हो जाएगा, D1 इंटू D2 के बराबर, ठीक है। दोनों का डायमीटर का मल्टीप्लिकेशन आपका हो जाएगा, दैट इज द कॉमन एरिया। और टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये आपकी रिपीट है, जैसे मैंने बना रखा, ये आपकी रिपीट है यहां से लेकर के यहां तक येलो कलर के अंदर, ठीक है। इस रिपीट का टोटल एरिया बराबर हो जाएगा 1/n1 इंटू 1/n2, ठीक है। तो नाउ तो एंड दिस विल बी इक्वल टू Kc। ये आपको समझ में आ गया, D1 इंटू 1/n2 वार प्रोजेक्टेड एरिया, D2 इंटू 1/n1 वेट प्रोजेक्टेड एरिया, माइनस ये एरिया दोनों दो बार कॉमन हो गया जब हमने वार्प का प्रोजेक्टेड एरिया निकाला और हमने वेफ्ट का प्रोजेक्टेड एरिया निकाला। तो ये एरिया जो आ जाएगा ग्रीन वाला, ये दो बार आपका आ गया। तो इसको मैंने क्या किया, D1 एंड D2 से मल्टीप्लाई करके इसको हमने इस एरिया को मैंने रिड्यूस कर दिया। और टोटल एरिया कितना हो जाएगा आपका, ये आपकी रिपीट है, तो इसका लेंथ हो जाएगी आपकी 1/n1 और विड्थ हो जाएगी 1/n2। तो टोटल एरिया हो जाएगा 1/n1 इंटू 1/n2, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट योर Kc, फ्रैक्शनल कवर फैक्टर, ठीक है। अब आप Kc बराबर हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n1 d1 प्लस n2 d2 माइनस n1 n2 इंटू d1 d2, ठीक है। तो दिस विल बी द टोटल एरिया, दिस विल बी द फार्मूला। अगेन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ द d1 और D1 की वैल्यू वही जनरल इक्वेशन हम रखेंगे, D1 की वैल्यू। तो Kc बराबर हो जाएगा आपका n1 अपॉन SDF1 अंडर रूट V1 अपॉन अंडर रूट n1 प्लस n2 SDF2 अंडर रूट V2 अपॉन अंडर रूट n2 माइनस n1 अपॉन अंडर रूट n1 आ जाएगा इंटू n2 अपॉन अंडर रूट n2 आ जाएगा। और ये यहां पर हो जाएगा SDF1 अंडर रूट V1 इंटू SDF2 अंडर रूट V2। अभी मैंने क्या किया है कि वार्प एंड वेफ्ट दोनों अलग अलग सिस्टम के अंदर ले लिया है। वार्प की वैल्यू मैंने ले लिया है
सिस्टम डायमीटर फैक्टर, जैसे आपने कॉटन